Hello students, welcome to our online lecture. Now this is our sixth lecture of aldehydes, ketones and carboxylic acid. In last lecture, we discussed the chemical reactions of aldehyde ketones. In that, we have seen the first reaction is Grignard reagent reaction. Whenever a Grignard reagent reacts with aldehydes and ketones, we get different types of alcohol that we have seen in last lecture. Secondly, the nucleophilic addition and elimination of aldehydes and ketones with ammonia derivatives. Here, the removal of water molecule takes place whenever a derivative of ammonia reacts with aldehyde and ketone. We get different types of imine compounds. That means carbon double bond N bond formation takes place, and this species is called as the imine species. Afterwards, we have seen the aldol condensation reaction, that is very important reaction in this chapter. Most of the time, it is very important from the exam point of view. Okay. So here, in aldol condensation, one aldehydic functional group is present and another one is alcohol, that is OH. Two functional groups are present in a same molecule in product form, so that's why it is called as the aldol. And how it is obtained? It is obtained by the reaction of two aldehydes or two ketone molecules. In that, the alpha hydrogen atom must be present. The condition should be applied. क्या होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग aldehydes and alpha hydrogen atom containing ketones अगर है, then it undergo aldol condensation. Okay, and lastly, we have seen the haloform reaction, and haloform reaction is one of the most characteristic test for the identification of iodoform. Whether iodoform formation takes place or not, that will be identified by using this haloform reaction or haloform test. Okay, now today we are going to discuss the next chemical reaction of aldehyde and ketone, that is nothing but a Cannizzaro reaction, and this is also very important like aldol condensation. In Cannizzaro reaction, again ये Cannizzaro है, मतलब this is the name of scientist, right? And this is one of the name reaction again like aldol condensation. So in Cannizzaro reaction, the compound aldehyde, in that if there is no any alpha hydrogen atom is present in a aldehyde, then this compound or then this aldehyde is undergo Cannizzaro reaction. Now listen carefully. This is the exact opposite reaction for the aldol condensation. In aldol condensation, condition should be applied कौन सी थी कि compound of aldehyde or ketone must contain alpha hydrogen atom. अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ही aldol condensation प्रोसीड होगी. बट इन केस ऑफ Cannizzaro रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग अगर अल्डिहाइड या कीटोन है तो वो ये Cannizzaro रिएक्शन नहीं देता है. कंडीशन क्या है यहाँ पे? अल्डिहाइड must not contain alpha hydrogen atom. That means this reaction is given only by aldehydes having a no alpha hydrogen atom is there. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए. अगर नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. एंड अगेन वन ऑफ द second distinguished character in this reaction is that in that a hot or a concentrated alkali is used. ठीक है, इन aldol condensation हम लोगों ने क्या यूज किया था? 50% NaOH और aqueous NaOH is used in aldol condensation. But in case of Cannizzaro reaction, a concentrated alkali is used. ठीक है, that is the second difference in between. अगर आपको पूछा जाए what is the difference in between aldol condensation and Cannizzaro reaction, first तो क्या है कि aldol condensation require alpha hydrogen atom containing aldehyde and ketone.
कैनेजोरस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए अल्डिहाइड में. सेकंड इज इन aldol condensation dilute NaOH is used or aqueous NaOH is used as a base, and in Cannizzaro reaction concentrated alkali is used for Cannizzaro reaction. ठीक है. So what is the reaction here? Whenever a concentrated alkali, ठीक है, concentrated alkali is heated with aldehydes. Now these aldehydes, कौन से aldehyde जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है? ऐसा कौन सा aldehyde होता है? फॉर्म aldehyde, बेंज aldehyde, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है. It undergoes self oxidation and reduction reaction. वो खुद से ही ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है. And this type of reaction is called as disproportionation reaction. This is the example of this Cannizzaro reaction is the example of disproportionation reaction, in that one molecule of aldehyde is undergo reduction and another molecule or the second molecule of aldehyde is undergo oxidation. And as we know, whenever aldehyde is undergo reduction, we get alcohol, and whenever aldehyde is undergo oxidation, we get carboxylic acid. So what are the two different products in this reaction? First is alcohol, second one is acid or salt of acid. Because here two molecules of aldehyde are used. कौन से two molecules? The aldehydes which is not having the alpha hydrogen atom, it undergo reduction as well as oxidation. We get alcohol as well as carboxylic acid or the salt of carboxylic acid, and this reaction is called as Cannizzaro reaction. Now as you can see on the screen, this is the example of Cannizzaro reaction. See here, formaldehyde, this is our formaldehyde. Two molecules of formaldehyde is there. Formaldehyde का formula HCHO. Here अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है क्या? नहीं है, बिकॉज अल्फा कार्बन एटम ही नहीं है, और अगर अल्फा कार्बन एटम ही प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? So this is formaldehyde, in that there is no alpha hydrogen atom. So two molecules of formaldehyde is used, and here concentrated NaOH is taken. Concentrated NaOH is taken which undergo heating. Now as we know, one molecule of aldehyde is undergo reduction, तो अपने को मिलेगा अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल मिलेगा? This. यहाँ पे क्या होगा? This oxygen atom become OH and one of the hydrogen atom is attached over this hydrogen atom. Reduction होता है तो we get this methanol. And second molecule of aldehyde is undergo oxidation. तो oxidation हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा? Formation of acid. But NaOH होने के कारण sodium salt of formic acid अपने को मिलेगा. That is called as the sodium formate. Now you should remember that whenever two molecules of formaldehyde reacts with concentrated NaOH, the products क्या रहेंगे? It undergo heating and products are sodium formate with methanol. So this is reduction product and this is oxidized product. This is reduced product or this is oxidized product, and this reaction is called as disproportionation reaction. Okay. Now see the mechanism of this Cannizzaro reaction. Now one thing you should remember कि आपको मैकेनिज्म एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा. लिसन, मैकेनिज्म आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बट ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ मैकेनिज्म, इट इज जस्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कि एक्जैक्टली ये रिएक्शन होती कैसी है. नाउ सी हियर, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अवर अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मल्डिहाइड. दिख रहा है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और ये H. Now as we know, this carbon in carbon atom is the partially positive charge and oxygen atom partial negative charge. Because of oxygen is more negative atom, electronegative atom. तो इसकी क्या टेंडेंसी रहती है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच देगी. राइट. So now you have to use NaOH और KOH. यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया था? एक तो आप NaOH भी यूज कर सकते हो या KOH भी यूज कर सकते हो, whatever may be the. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना चाहिए KOH और NaOH. अब बेस है मतलब विच इज हैविंग ए OH माइनस आयन. तो ये जो OH माइनस आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे अटैक करेगा. ये तो मैकेनिज्म हम लोगों ने बहुत बार देखा है कार्बन एटम का. सो इट इज अटैक ऑन दिस कार्बन एटम. नाउ दिस जैसे यहाँ पे अटैक होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे. राइट. व्हाट विल बी द स्पीसीज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट? तो
तो ये वाला अपना कार्बन, नाउ दिस इज एज इट इज हाइड्रोजन एटम, ये वाला भी हाइड्रोजन एटम एज इट इज। यहाँ पे क्या ऐड हो गया, OH यहाँ पे अटैच हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ the pi electron shifted over this oxygen atom, it acquired negative charge. Now अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो हो गया अनस्टेबल। तो वो बोलेगा अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज उसने अपने अपने पे शिफ्ट कर लिया था वो फिर से यहाँ पे रिगेन कर लेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो कार्बन कोई तो भी एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब कौन सा करेगा, OH के साथ तो अभी न्यूली फॉर्म था तो उसके साथ वो ब्रेक नहीं कर सकता, बचे कौन, दो हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का बॉन्ड वो ब्रेक कर देगा एंड हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन, इन द फॉर्म ऑफ H माइनस आयन। ठीक है, H प्लस के फॉर्म में नहीं, हाइड्राइड के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, देके नहीं जा रहा है कार्बन को, खुद के साथ लेके बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। दिस इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ओके, अब ये हो गया अपना एक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। नाउ द अब एंट्री होती है अपने सेकेंड फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल की इन अ रिएक्शन। नाउ द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अगेन सेम, वहां पे कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्सीजन एटम है, तो ये जो हाइड्राइड आयन यहाँ पे था नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक कर सकता है ना, so it is attack on this positively charged carbon atom, that is electrophilic carbon atom। फिर से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, ये स्पीसीज तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, लाइक दैट कार्बन डबल बॉन्ड O OH और ये OH, दिस इज नथिंग बट ए फॉर्मिक एसिड, राइट। अब यहाँ पे क्या तैयार हो गया, ये हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा और ये हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। नाउ दिस इज O नेगेटिव आयन, राइट, और ये है अपना एसिड, फॉर्मिक एसिड, और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है। तो अपने को पता है लेविस एसिड, लेविस बेस की टेंडेंसी क्या रहती है, लेविस बेस क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और जिसपे लोन पेयर होगी, तो ये बेस करके एक्ट होगा। और सेम रिएक्शन में अपने कौन है, एसिड भी है, और एसिड की टेंडेंसी क्या रहती है, हाइड्रोजन को डोनेट करने की, H प्लस आयन को डोनेट करने की। तो ये जो बेस है दैट मीन्स ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन से हाइड्रोजन को, फॉर्मिक एसिड का जो हाइड्रोजन आइटम है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा इधर और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ये वाले ऑक्सीजन पे। नाउ सी हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस मिथेनॉल टेक्स प्लेस, ये वाला, ये 3 हाइड्रोजन और ये OH बन जाएगा। नाउ वी गेट इट मिथेनॉल, मिल गया अपने को फर्स्ट प्रोडक्ट। और सेकंड प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देके जाएगा OH प्लस के फॉर्म में। तो ये नेगेटिव किसके साथ स्टेबलाइज होगा, जो हमने रिएक्शन मिक्सचर में KOH लिया था उसका OH माइनस आयन तो यूज हो गया यहाँ पे हियर, और K प्लस तो वैसे का वैसे ही था ना, तो वो K प्लस ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करता है एंड वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेट। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिसारोस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो OH माइनस आयन अटैक ऑन दिस कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, वी गेट दिस स्पीसीज। नाउ हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन बाहर निकलता है जो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करता है और वहां पे अपने को मिलता है ये स्पीसीज फॉर्मिक एसिड विद बेस। अब बेस की टेंडेंसी रहती है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की, फॉर्मिक एसिड का हाइड्रोजन ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट मिलता है मिथेनॉल जो कि रिडक्शन का प्रोडक्ट होता है, और सेकंड प्रोडक्ट अपने को मिलता है सोडियम और पोटेशियम फॉर्मेट जो कि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। Now this is the mechanism of Cannizzaro reaction. I hope आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। Now see the example. One more example here. Benzaldehyde is taken. Benzaldehyde here. Carbon atom is this and hydrogen. Again there is no alpha hydrogen atom क्योंकि इसका अल्फा कार्बन एटम ये है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है क्या, नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम इसकी वैलेंसी 4 हो गई सेटिस्फाइड, एक डबल बॉन्ड, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी, यहाँ का हाइड्रोजन ही रिप्लेस करके यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच हुआ है ना, दैट मीन्स देयर इज नो अगेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, absence of alpha hydrogen atom. Now it undergo
Cannizzaro reaction in presence of this concentrated KOH in methanol, it undergo heating, formation of what, क्या तैयार होगा, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है और एक रिड्यूस प्रोडक्ट मिलता है. रिड्यूस प्रोडक्ट क्या रहेगा, अल्कोहल. इट वी गेट फिनाइल मिथेनॉल और बेंजील अल्कोहल. और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट इज पोटेशियम बेंजोएट्स, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब पोटेशियम बेंजोएट. ओके, so this is the one more example of this Cannizzaro reaction. Now the cross Cannizzaro reaction. Next is the cross Cannizzaro reaction. अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने देखा था, सिमिलरली क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन भी है. अब क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन मतलब क्या है? Here a mixture of formaldehyde and benzaldehyde. Two different types of aldehydes are used here. One is formaldehyde and another one is benzaldehyde. दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है. Now it undergo heating with strong base. अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिनाइल मिथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल, एंड फॉर्मिक एसिड इज द सेकंड प्रोडक्ट. इट अंडरगो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट तैयार करेगा और बेंजल्डिहाइड रिड्यूस प्रोडक्ट तैयार करेगा, एंड वी गेट दिस कंपाउंड दैट मींस phenyl methanol and formic acid. This is nothing but a cross Cannizzaro reaction. Now the next reaction of aldehydes and ketones is oxidation and reduction reaction of aldehyde and ketone. कौन सी है, oxidation and reduction of aldehyde and ketone. See, this is very important reaction again. Whenever aldehydes are oxidized to give a corresponding acid. Now aldehydes are easily undergo oxidation by using dilute HNO3 as oxidizing agent, or we have to use potassium permanganate or sodium or potassium dichromate in acidic medium. All these are reagents are used as oxidizing agent, and we get carboxylic acid as a product whenever aldehyde is undergo reduction, oxidation. Okay, whenever aldehyde is undergo oxidation, remember that whenever aldehyde is undergo oxidation, the product is acid. ठीक है, see the example. We get this product acid if here acetic acid is there. अगर मैं यहाँ पे acetaldehyde is used, that is CH3. एसिटाल्डेहाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, CH3CHO. एसिटाल्डेहाइड को हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, इथेनॉल, राइट. दिस इज एसिटाल्डेहाइड. ओके, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है बट है तो वो एसिटाल्डेहाइड ही, CH3CHO. नाउ इट अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम और डाइल्यूट HNO3. ऑक्सीडाइज करो उसको तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा. जनरल रिएक्शन तो आपके सामने ही है, क्या है जनरल रिएक्शन. Whenever aldehyde is undergo oxidation, we get this carboxylic acid. Now acetaldehyde अगर ऑक्सीडाइज होता है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए. ऐड करो वहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीडेशन होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करो तो प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड. Understood? So whenever aldehyde is undergo oxidation, we get acid, carboxylic acid as a products. Now if the ketone is undergo oxidation, now ketone को oxidation थोड़ा complicated होता है, ठीक है, because of वहाँ पे कार्बन और मतलब COC का बॉन्ड होने के कारण वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है. Now see, ketone resist oxidation due to strong COC bond, but they are oxidized by a strong oxidizing agent.
कीटोन में जो स्ट्रॉन्ग सीओसी बॉन्ड होने के कारण वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है, बट इफ वी यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इट अंडरगो ऑक्सीडेशन. ठीक है, the strongest oxidizing agent like chromic oxide, if we use chromic oxide then it undergo oxidation. See here, this is propanone. एसीटोन नहीं है, CH3COCH3. अब ये ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पे जहाँ कीटोन में अगर ऑक्सीडेशन करना है तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला. मीन्स व्हेनेवर ये अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिक्सचर ऑफ is heated with carboxylic acid, sorry, is heated with ketone, we get a mixture of carboxylic acid which is having a less number of carbon atom than the starting ketone. ठीक है, अपने को क्या मिलेगा प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, बट कीटोन में जितने कार्बन एटम होंगे उससे लेस कार्बन वाला ही प्रोडक्ट अपने को मिलेगा. Now how this will happen? See here, this is propanone, CH3COCH3. Now it undergo oxidation. तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये हो जाता है ब्रेक. अब ये ब्रेक जैसे होता है तो इस साइड में जितना प्रोडक्ट रहेगा, जितने कार्बन रहेगी उसका एक एसिड बनेगा, और इस साइड में जितने कार्बन रहेगी उसका एक एसिड बनेगा. तो इस साइड में कितने कार्बन एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो एक कार्बन दूसरा कार्बन, 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड, और ये साइड में एक ही कार्बन एटम है और एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड. So whenever propanone or acetone is undergo oxidation by using KMNO4 with H2SO4 or concentrated HNO3, we get mixture of acetic acid and formic acid. Similarly, if 3-pentanone is used, 3-pentanone, ठीक है, 3-pentanone अगर यहाँ पे यूज करते हो तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. इस साइड में जितने कार्बन एटम है उसका एक एसिड बनेगा. कितने कार्बन एटम है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 और 3 कार्बन एटम का एसिड प्रोपियोनिक एसिड. और ये साइड में कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम का एसिड एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड मिल गया. अगर ये यहाँ से ब्रेक होता था, जरूरी नहीं है कि यही कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये भी हो सकता है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा. 2 कार्बन एटम का एसिड एसिटिक एसिड और 3 कार्बन एटम का एसिड प्रोपेनोइक एसिड. ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन. whenever ketone is undergo oxidation the product of acids mixture of product मिलेगा कौन सा एसिड का, जिसमें कार्बन कार्बन एटम लेस रहेगा पेरेंट कीटोन से. राइट, one more example here. See, this is सेम एसीटोन का हम लोगों ने लिखा है. नाउ दिस इज मिथाइल इथाइल कीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन. राइट, दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन. नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन. तो यहाँ पे ये दो साइड से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. तो हम लोग दोनों टाइप की रिएक्शन देखेंगे. नाउ फर्स्टली कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो तो इस साइड में जितने कार्बन रहेंगे उसका एक एसिड, दैट मींस दिस 2 कार्बन एटम वाला एसिड एसिटिक एसिड. और इतने साइड में कितने कार्बन एटम है, अगेन 2 इथाइल ग्रुप है ना, तो अगेन इस एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेनेवर इट अंडरगो ऑक्सीडेशन. नाउ अगर आप लोग यहाँ से ब्रेक करते हो बॉन्ड को, यहाँ से अगर ब्रेक करते हो, नीचे मैंने वही लिखा है एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है. अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, मिथाइल और कार्बन कार्बन के बीच का. तो ये साइड में जितने कार्बन एटम रहेंगे उसका एक एसिड. हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट हियर, 3 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एंड 1 3 कार्बन एटम का एसिड प्रोपेनोइक एसिड. और ये साइड में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है तो एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड. अंडरस्टूड? So the mixture of formic acid and propanolic acid with acetic acid is obtained whenever ethyl methyl ketone is undergo oxidation by using chromic oxide. Understood? So this is called as the oxidation of aldehydes and ketones. Only oxidation. Now the next one is reduction of aldehyde and ketone. अब अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा. नाउ द नेक्स्ट वी विल सी द रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone. Now there are 2 different reactions of reduction. One is Clemmensen reduction and another one is Wolff-Kishner reduction.
one is Clemmensen reduction and another one is Wolff-Kishnan reduction. Whenever aldehyde and ketones are undergo reduction, ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन कौन से ग्रुप का होगा? कार्बोनिल ग्रुप का. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा. So aldehyde and ketones are undergo reduction and which is reduced to CH2 group whenever it is treated with zinc amalgam and concentrated HCl. Zinc amalgam and concentrated HCl, which is the reagent used in Clemmensen reduction, or with hydrazine, which is on heating with sodium or potassium hydroxide in ethylene glycol, which is the reagent for Wolff-Kishnan reduction, we get same product. ठीक है, तो यहाँ पे टू डिफरेंट रिएक्शंस है, दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं. कौन सी है? फर्स्ट वन इज क्लेमेंसन, अनदर वन इज वुल्फ-किश्नर. अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग. दिस इज अल्डिहाइड रहेगा या तो फिर कीटोन रहेगा, दोनों में एक बात तो कॉमन ही है ना, कार्बोनिल ग्रुप. नाउ हियर रिएजेंट्स आर डिफरेंट. वन इज जिंक अमलगम विथ HCl. ठीक है, क्या मिलेगा रिडक्शन का प्रोडक्ट? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे, ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और यहाँ ये वाले ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे. तो कार्बन एटम बिकम CH2 ग्रुप और ये ऑक्सीजन बाहर निकल के वी गेट H2O ग्रुप. So whenever zinc amalgam is used with concentrated HCl, the reaction is Clemmensen reduction. ठीक है. सेकंड रिएजेंट क्या रहेगा? If we use hydroxylamine या हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन with sodium और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इथिलीन ग्लाइकोल, तो अपने को मिलेगा सेम प्रोडक्ट. दैट मींस CH2 ग्रुप वहां पे ऐड रहेगा और N2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुल्फ-किश्नर रिएक्शन. दैट मींस आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम ही है, रिएक्टेंट भी सेम है, ओनली रिएजेंट डिफरेंट है. और रिएजेंट डिफरेंट होने के कारण रिएक्शन का नाम भी डिफरेंट हो चुका है. प्रोडक्ट्स आर सेम. कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन CH2 ग्रुप में रिडक्शन में हो जाता है. ठीक है, सो दिस आर द रिडक्शन रिएक्शन. नाउ सी वन बाय वन. See here, एल्डिहाइड और कीटोन है, उसका कन्वर्जन अल्केन में होगा आफ्टर रिडक्शन. ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर अंडरगो रिडक्शन, वी गेट अल्केन. हाउ? दिस इज RCHO और RCOR. दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन. रिडक्शन करो RH बनेगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप तो निकल ही जाता है, वहां पे CH2 आता है, ये पूरा ग्रुप निकल आता है और इसका कन्वर्जन CH2 में हो जाता है. क्या बनेगा? अल्केन ही बनेगा ना आफ्टर रिडक्शन. नाउ ये रिडक्शन रिएक्शन दो साइंटिस्ट ने दिए. कौन से? वन इज क्लेमेंसन, अनदर वन इज वुल्फ-किश्नर. नाउ दिस इज अवर एल्डिहाइड और कीटोन. फर्स्ट रिएजेंट कौन सा था? जिंक अमलगम विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन एसिडिक मीडियम. तो अपने को क्या मिलेगा? दिस कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू ए CH2 ग्रुप, मतलब अल्केन. सेकेंडली, if you use hydroxylamine with KOH with glycol as a solvent, सेम प्रोडक्ट मिलेगा. दिस कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड निकल के, सॉरी, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, मतलब CH2 बनेगा, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. वी गेट अगेन सेम प्रोडक्ट. दैट मीन्स वेज आर डिफरेंट बट प्रोडक्ट्स आर सेम. तो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे कि अपना रिएक्टेंट सेम है और यहाँ से दो रास्ते चालू हो चुके हैं प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए. फर्स्ट वे है बाय यूजिंग दिस क्लेमेंसन रिडक्शन, दैट मींस जिंक अमलगम विद HCl, और सेकंड वे इज दैट वुल्फ-किश्नर, हियर हाइड्रोक्सिलामाइन विद KOH इन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट, और अपना जो टारगेट रहेगा वो सेम ही रहेगा. ठीक है, मींस अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, ओनली वेज आर डिफरेंट. एक वे एक क्लेमेंसन रिडक्शन का है और दूसरा वे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन का है. अंडरस्टूड? सो आप लोगों को यहाँ पे रिएजेंट ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लेमेंसन का रिएजेंट कौन सा है और वुल्फ-किश्नर का रिएजेंट कौन सा है. नाउ सी वन बाय वन हियर. एंड इन बोथ रिएक्शन क्या है? इन बोथ रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम. ऑक्सीजन को बाहर निकालना है और उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करने. नाउ सी द फर्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. In Clemmensen reduction reaction, this carbonyl group of aldehyde or ketone reacts with zinc amalgam with concentrated HCl. ये अपना रिएजेंट है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़ेगा. So this oxygen atom is replaced by 2 हाइड्रोजन एटम, मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा.
नाउ दिस कार्बन बिकम CH2 और ये ऑक्सीजन बाहर एयर में तो नहीं रहेगा, उसके साथ भी दो हाइड्रोजन एटम अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल तैयार होगा। नाउ दिस बिकम मिथिलीन ग्रुप और यहाँ पे अगर R है और यहाँ पे अगर H है तो इट बिकम RCH3। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द अल्केन। सो व्हेनेवर aldehyde or ketone is undergo Clemmensen reduction we get alkene. See the example. देखो यहाँ पे this is acetone. Acetone is undergo reduction by using Zn with Hg concentrated HCl. Now this is Clemmensen reduction because reagent से आपको लोगों को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये reagent है मतलब ये Clemmensen है। तो Clemmensen का कौन सा रहता है? जिंक अमलगम विथ concentrated HCl। क्या मिलेगा यहाँ पे? दो हाइड्रोजन एटम अटैच होके प्रोपेन विथ वाटर। If we use propanol, that means propionaldehyde, it undergo reduction, Clemmensen reduction by using Zn with Hg, concentrated HCl के presence में we get this propane with water molecule. Now this is called as the Clemmensen reduction reaction. In that zinc amalgam is used with concentrated HCl, addition of hydrogen atom takes place, antimole of oxygen atom takes place. ठीक है? Next is Wolff-Kishner reduction reaction. Wolff-Kishner reduction reaction में क्या होगा? In Wolff-Kishner reduction में same reactants are same, products are same, only difference क्या रहेगा यहाँ पे? अपना reagent, and reagent is nothing but a hydroxylamine with water with KOH and glycol. Firstly this carbon atom reacts with this hydroxylamine. ये reaction हम लोगों ने already देखी है last lecture में। यहाँ से क्या निकलता है? ये water molecule बाहर निकल जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड N तैयार होकर ये हाइड्रोजन मिलता है। After that it undergo reaction with KOH with glycol, we get CH2, मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम ऐड होके ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा N2 मॉलिक्यूल। सो वी गेट दिस मिथिलीन ग्रुप, एंड मिथिलीन ग्रुप मतलब वहाँ पे अल्केन तैयार हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दिस इज प्रोपेनल, दैट मीन्स प्रोपियोनल्डिहाइड रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोक्सिलामाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन तैयार होता है और सेकंड स्टेप में क्या तैयार होता है? प्रोपेन, right? Second step में propane. Now this is hydrazone and it undergo reaction with KOH with with glycol, formation of this propane with liberation of N2 molecule. So now here reagent is used. कौन सा reagent use किया है? Here hydroxylamine with KOH with glycol as a ethylene glycol as a solvent. So the product is alkane with the evolution of N2 gas, and the reaction is called as Wolff-Kishner reduction reaction. Okay, now this Wolff-Kishner reduction reaction is used to prepare, see here, Wolff-Kishner reduction reaction का in short अगर हम लोग देखते हैं in basic medium क्या होता है, देखो यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामाइन दैट मींस हाइड्रोजन यूज किया है, डिमोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लाइक दैट, KOH और ग्लाइकोल के प्रेजेंस में H2 बाहर निकल गया और यहाँ पे तैयार हो गया, टू हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे दैट मींस इथेन विथ N2. सिमिलरली हियर इफ यू यूज एसीटोन, हाइड्रोजन ले लो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N, सेम KOH विद ग्लाइकोल अगर यूज करते हो तो अपने को मिलेगा प्रोपेन विद N2. ठीक है, सो अपने को हीफ हाइड्रोजन विद KOH विद ग्लाइकोल अगर यूज होता है तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा अल्केन, बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज Wolff-Kishner रिडक्शन रिएक्शन. सी वन मोर एग्जांपल हियर, सेम प्रोपेनल, अभी हम लोगों ने देखी है रिएक्शन. नाउ इफ वी यूज इथाइल फिनाइल कीटोन, नाउ दिस इज इथाइल फिनाइल कीटोन, कुछ नहीं है, कितना भी बहुत बड़ा स्टार्टिंग मटेरियल आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कार्बोनिल ग्रुप पे, और जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम को चिपका देना है और ऑक्सीजन को निकाल के रखना है बाहर, बस दैट्स इट. कितना भी बड़ा रिएजेंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मिल गया C डबल बॉन्ड NH2. अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोक्सी KOH विद ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन एटम की एडिशन होगी यहाँ पे, कहाँ पे, कार्बन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, जहाँ पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, और ये N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, हो गया CH2 विद N2. वी गेट दिस N प्रोपाइल बेंजीन. क्या मिलेगा प्रोडक्ट? N प्रोपाइल बेंजीन. N प्रोपाइल बेंजीन कैसे नाम पड़ा उसका? नाउ
दिस इज प्रोपाइल ग्रुप एन प्रोपाइल है और ये वाला बेंजीन है, so that's why the nomenclature is n propyl benzene. This is called as the Wolff-Kishner reduction reaction. Now this Wolff-Kishner reduction is used to synthesize straight chain alkyl substituted benzene. ठीक है, straight chain alkyl substituted benzene which is not possible by the Friedel-Crafts alkylation reaction. फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करो या इंट्रोड्यूस करो, वी गेट अल्काइल बेंजीन. बट फ्रेडल क्राफ्ट के लिए लिमिटेशन है कि सिर्फ एक या दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप ही वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो. बट वुल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन रिएक्शन के लिए ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट. यहाँ जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये रिएक्शन में देखा कि हम लोग कितना भी कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ले सकते हैं यहाँ पे, राइट. इतना भी बहुत बड़ा, मतलब 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, और जितना ज्यादा रहेगा उतने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप. सो यहाँ पे लिखा है इसका यूज कि वुल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज स्ट्रेट चेन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हिच इज नॉट पॉसिबल बाय द फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. ओके, सो दिस इज नथिंग बट ए रिडक्शन रिएक्शन. सो कौन से रिडक्शन रिएक्शन हम लोगों ने देखे, one is Clemmensen reduction reaction and another one is Wolff-Kishner reduction reaction. In both reaction, the reactant and products are same, only reagents are different. If the reagent is zinc amalgam with concentrated HCl, then the reduction reaction is Clemmensen reduction reaction, and if the reagent is hydrazine with KOH in basic media and glycol as a solvent, then the reaction is Wolff-Kishner reduction reaction. अंडरस्टूड. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस अल्डिहाइड एंड कीटोन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. नाउ एज वी नो, this aromatic electrophilic substitution reaction is depends on the substituent, it depends on the species that is already present on the benzene ring. Okay, that is already present on the benzene ring. Now these aromatic aldehydes and ketones undergo electrophilic substitution reaction like nitration, sulfonation, halogenation, like that. So aldehydes, ketones जो भी aromatic है वो भी ये reaction को प्रोसीड करते हैं लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन. बट दिस अल्डिहाइडिक ग्रुप और दिस कीटोनिक ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से. सो इट विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट. और जैसे वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है खुद की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी. सो इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग and at ortho and para position. Hence, whenever aldehydes and ketones are undergo electrophilic substitution reaction, we get always meta products. Now, how it is possible? See the resonance structure. Whether this group is OP directing or ortho para directing or meta directing, ये कौन decide करता है? ये decide करता है its resonance structure. Now, as you can see on the screen here, this is our benzaldehyde molecule. राइट, दिस इज आवर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल. और यहाँ पे कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड O है और हाइड्रोजन एटम है. एज वी नो, अल्कोहल अगर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे या NH2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, तो उनके पास लोन पेयर रहती है. मिथाइल ग्रुप पे लोन पेयर नहीं रहती है, बट उसकी इंडक्ट प्लस आर इफेक्ट के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करके एक्ट होता है, प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट. ठीक है, बट यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, जिनके पास लोन पेयर रहती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को. जिनके पास लोन पेयर नहीं रहती वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से. और जब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है बेंजीन रिंग से, तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है फ्रॉम ऑर्थो पैरा टू ऑर्थो पोजिशन. नाउ हाउ पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेस, हाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ this aldehydic functional group, how withdraw this electron from this benzene ring. Now see here, कार्बोनिल कार्बन एटम यहाँ पे है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन हैविंग ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम. ठीक है,
ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ऑक्सीजन खुद की तरफ खींचेगा, खुद पे शिफ्ट कर लेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये कार्बन आइटम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा ना, 3 ही बॉन्ड रहेंगे उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वजह से बनता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एंड एज वी नो बेंजीन के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे क्लाउड ही रहता है। तो बेंजीन दयालु है बेचारा, वो बोलते हैं ठीक है मैं कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूँ, तो वो कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग, मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बन और ये कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये वाला, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे। नाउ ये पाई बॉन्ड जैसे यहाँ पे शिफ्ट होता है, दिस कार्बन एटम बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। और दिस कार्बन एटम बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम बेंजीन रिंग के अंदर वाले कार्बन पे है, तो बेंजीन, ये तो सबको पता है ना कि इन ऑल कार्बन एटम्स इन बेंजीन रिंग आर सेम। तो अगर अपने घर में पॉजिटिव चार्ज है, तो बाजू अपना जो भाई बहन रहेंगे बाकी के पाई बॉन्ड्स, वो उसको हेल्प तो करेगा है ना। तो ये जो दूसरा पाई बॉन्ड है, वो बोलेगा तू अब स्टेबलाइज हो जाए, मैं थोड़ी देर के लिए मैं अनस्टेबल हो जाता हूँ। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड तैयार होगा, तो ये कार्बन एटम स्टेबलाइज हो जाएगा। बट ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने के कारण ये कार्बन एटम बिकम पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ अगेन सेम फैमिली है, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करते ही है, तो ये बाजू वाला पाई बॉन्ड बोलेगा मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। बट जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये वाला पॉजिटिव कार्बन एटम बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। नाउ अब ऑक्सीजन के मन में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मैं शिफ्ट, जैसे मैंने खींच लिए थे वैसे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। ऑक्सीजन शिफ्टेड इट्स ओन लोन पेयर इन बिटवीन दिस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, कार्बन की वैलेंसी बिकम 5, नया बॉन्ड जो उसने पाई तैयार किया था वो यहाँ पे शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड तैयार हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा उल्टा ड्रॉ हुआ है, बट नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे पाई बॉन्ड होना चाहिए था, तो इन्होंने यहाँ पे उल्टा ड्रॉ किया है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या दिख रहा है, from this resonance structure we can say that the positive charge of this in benzaldehyde is delocalizes from ortho para to ortho position। कौन से पोजीशन पे delocalized हो रहा है, ये वाली ortho, ये वाला para, ये वाला कौन सी पोजीशन है para, and this is also ortho। तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो रहा है फ्रॉम ऑर्थो पैरा टू ऑर्थो पोजिशन, so that's why इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। और मेटा पोजिशन पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, मेटा पोजिशन पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर विद द ऑर्थो एंड पैरा यहाँ पे ज्यादा है, मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाके अटैच होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे कोई चांस ही नहीं, बिकॉज इटसेल्फ दिस पोजिशन इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा ही नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास इलेक्ट्रोफाइल जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसी सेंटर पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। सो फ्रॉम दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी कैन से दैट फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन the incoming electrophile is attached on the meta position rather than the ortho and para position, because at ortho and para position positive charge is there, and positive charge hona matlab electron density is less। okay, so in case of इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेनेवर the aldehydic and ketonic groups are withdraw the electrons from the benzene ring, so it deactivates the benzene ring at ortho and para position, hence it forms the meta product। कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, मेटा प्रोडक्ट। whenever nitration, sulfonation and halogenation of benzaldehyde takes place we always use meta product। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन शो की है। Now see here, benzaldehyde is undergo nitration by using this concentrated nitric acid। नाइट्रेशन मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप का नेचर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो इट it deactivates the ring at ortho and para position, so that's why ortho para position पे कोई चांस ही नहीं है नाइट्रो ग्रुप को जाने का।
ये इलेक्ट्रोफाइल है ना यहाँ का, तो ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, दिस इज अटैच ऑन दिस मेटा पोजिशन, तो यहाँ पे जाके वो अटैच हो जाएगा एंड वी गेट मेटा नाइट्रोबेंज अल्डिहाइड। क्या तैयार हो रहा है, मेटा नाइट्रोबेंज अल्डिहाइड। So this is the nitration of benzaldehyde. Similarly, we have to do सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप कहाँ अटैच होता था, एट मेटा पोजिशन, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहाँ पे जाके अटैच होगा, दिस कार्बन एटम मेटा पोजिशन। अगर हैलोजिनेशन करना रहा तो क्लोरीन गया, अगर हैलोजनाइजर है तो वो भी कहाँ पे अटैच होता था, एट मेटा पोजिशन। तो मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेनेवर benzaldehyde is undergo electrophilic substitution reaction. Understood student? What is the reason behind that? हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस एल्डिहाइडिक फॉस्फोर ग्रुप एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टिंग, बिकॉज the positive charge delocalizes from ortho para and ortho position because of aldehydic group withdraw the electron from benzene ring. Okay, so incoming electrophile is attached on meta position, so that's why these aromatic aldehydes and ketones act as a meta directing for incoming electrophile. So this is called as the electrophilic substitution reaction of aldehydes and ketones. Understood? So I hope आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने ये चैप्टर, ये लेक्चर में क्या क्या देखा, here firstly Cannizzaro reaction. In Cannizzaro reaction, if the अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो Cannizzaro रिएक्शन कौन से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं, दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय those aldehydes which is having a no alpha hydrogen atom, so it undergo self reduction and self oxidation, that means disproportionation reaction. One product is obtained as a alcohol and another product obtained as a sodium or potassium salt of acid. उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो प्रोडक्ट अपने को मिलता है एसिड, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो तो एक कार्बन लेस चेन का अपने को एसिड मिलेगा। और रिडक्शन में हम लोगों ने टू टाइप्स के रिडक्शन देखे, वन इज क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किर्चनर। क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट कौन सा होता है, सोडियम अमलगम विद कॉन्सनट्रेटेड HCl, एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन का रिएजेंट हाइड्राजिन विद KOH विद ग्लाइकोल, एंड द प्रोडक्ट इज सेम, अल्किन अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन देखा। whenever aldehyde, aromatic aldehyde is there, it undergo electrophilic substitution like nitration, sulfonation, halogenation. The product must be meta products, meta-nitrobenzaldehyde or meta-chlorobenzaldehyde or benzene benzaldehyde, meta-sulfonic acid, like that. Okay, so this is all about the reactions of aldehydes and ketones. अब यहाँ पे अपना अल्डिहाइड एंड कीटोन का पार्ट खत्म होता है, बट अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस बाकी है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय।